Okay, I welcome you all on behalf of our 91st Air Force anniversary. Okay. This station, in coordination with Civil Administration, Indian Army, and all the sister services, is always forthcoming as IF is with all the HADR operations, disaster relief, and for today's brief, we'll be giving you an outlook of our remotely piloted aircraft operations and its role in intelligence, surveillance, and reconnaissance operations. Okay. Recently, we had carried out HADR operations in Himachal Pradesh. Okay. CEO of Helicopter 130 unit is with us. He himself was involved in it. Okay. You can ask questions on HADR operations and RPA operations. So I leave you all with the free hand to shoot your questions. Okay. Thank you. Gentlemen, you may please raise your hands for your questions, please. Could you brief us? Conducted for flood relief in Himachal Pradesh were conducted in two phases by the unit. The first was ex-Pathankot, in which the districts of Indauria, etc. were involved when the waters of Pong Dam were opened and the villages downstream were flooded. Thereafter, second was when the flash floods took place in Mandi district, when all the roads were cut off and we had to support the local population as well as evacuate the sick patients. The operations were carried out ex-Bhuntar airfield in this time. The challenges faced in both the areas were different. First, ex-Pathankot, the issues were that all the villages were flooded and location of the survivors, coordination with the civil admin. We had the local SDM as well as the DCs on board and the MLAs, MPs supporting the operations at the helipads from where the operations are being launched. So during the areas where the villages were flooded, that was the time location of the survivors, the obstructions which were around, and most importantly, we had no places to land there. So there were already visuals in the media in which either winching of the casualties or the passengers was done, or we had to pick up the passengers and casualties at low hover or from rooftops. In Mandi district, it was a totally different gambit because the roads were cut off. The villages were now not having anything to eat. So relief material was a thing on which the media, the local administration was stressing in that area. And what we had to do was altitudes were high. We had to select fields. At that time, they were playing grounds. At times, there were just plowed fields, and we were at low hover dropping the relief supplies in these fields and handing over to the people. At time, we carried out 6 casualty evacuations in that area, which included people which were pregnant ladies, people who were suffering from cancer and had to be evacuated immediately to either Shimla or to Chandigarh. That was a time when a field where the aircraft has to land was required, and the crew was displaying utmost professionalism, making sure that there is no incident which took place in the entire thing, and conducted the operations very successfully. Mr. Anil Bhatt. कितना लोगों को इससे बेनिफिट मिला है, कितने ऑपरेशन आईएएफ ने किया पिछले 1 साल में? I'll get the data and come back to you. मैं आपको डाटा निकाल कर दे सकता हूँ इस चीज़ के लिए. ऑफहैंड मेरे पास ये डाटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम लोग JNK सेक्टर एज वेल एज हिमाचल पंजाब सेक्टर के अंदर और कोई भी इस तरह की आपदा आती है तो हमारे हेलीकॉप्टर्स जाते रहते हैं उस चीज़ के लिए रेगुलरली. Yes, Mr. Bhatt. ना करें इस चीज़ की, तो फिक्शन इंक्रीज करने के लिए
17 मीटर। और ये आपकी डिंगी है। सारे छाड़ो किसी का सारे छाड़ो रूल्स है इसका ये जब हवा में होवर कर रहा होगा, आप इसको अटैच कर सकते हैं इसके साथ, आदमी के साथ आप उसे पुल अप कर सकते हैं। तो ये आ गया, ये रेस्क्यू प्रोब है। इसको हम रेस्क्यू प्रोब बोला जाता है। क्रेडल टू बी मोर प्रिसाइज, रेस्क्यू क्रेडल। ठीक है, अगर हेलीकॉप्टर कहीं पर कुछ हो जाता है, इसके अंदर हमारे पास सर्वाइव करने के लिए सारा इक्विपमेंट अवेलेबल है। व्हाटएवर यू कैन थिंक, मतलब मेडिकल एवरीथिंग। ठीक है, दिस इज अ सिंपल हार्नेस। जिस समय हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो जो आदमी जहाज के अंदर है, जहाज हवा में है, फ्लाई कर रहा है, उसका डोर खुला हुआ है, कोई भी अंदर से बाहर गिर सकता है। तो इसको बांधकर अपने आप को आप हेलीकॉप्टर से अटैच करके रखते हैं, और उसके बाद आप आगे के ऑपरेशन करने शुरू करते हैं। ऑक्सीजन बॉटल, हाई ऑल्टीट्यूड्स के ऊपर फ्लाइंग करने के लिए किसी क्रू को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, एंड सिमिलर बॉटल किसी पैसेंजर को रिक्वायरमेंट है ऑन बोर्ड, द सेम थिंग इज यूज्ड। ये कितने लीटर की है? कितना वो है? ये 45 मिनट तक चलती है। इन केस ग्राउंड के ऊपर जो लोग हैं वो ऐसे हैं जो खुद लैडर के ऊपर चल सकते हैं, तो इस लैडर का यूज किया जाता है। इसका टिप्स खोलना ऊपर से ऊपर। सिक्किम में एक बार फिर लगातार वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चला रही है, लेकिन इससे पहले जो हिमाचल और पंजाब में प्राकृतिक आपदा आई थी, उसमें यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स ने एक बड़ा रोल जो है वो अदा किया था। और इस बीच लगातार इंडियन एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर हैं वो लगातार वहाँ पर लोगों की मदद जो है वो कर रहे थे, लेकिन इसके साथ ही साथ ये जो सभी लोग आप यहाँ पर देख रहे हैं, मास्क है। कई बार क्या होता है कि जो हेलीकॉप्टर जब इस तरह से हम लोगों ने स्ट्रक्चर वगैरह लगाए हुए हैं। यहाँ से हाँ जी, कर तभी मैंने क्या चीज हिमाचल में जो रेस्क्यू हुआ था ना, तो हमारी जम्मू की एयरफोर्स स्टेशन में भी इन्होंने काफ़ी हाँ, अभी और भी हैं, थोड़ा फ्लाई करेंगे। जी जी अपन थोड़ा पीछे आप पीछे आइए।
रोप है, कॉर्नर्स है और उसके अलावा ऑक्सीजन की वो कर रहा है उसका जो है जो भी करती है वो बोट की शेप में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। अगर पानी है नीचे, अगर फॉलो होते हैं पेशेंट को वहाँ से उठाना है, पैसेंजर को वहाँ से उठाना है या वहाँ पर हमें फ्लोट करना है तो वो एक बोट की शेप में जो है वो रूप धारण करेगी और उस समय जो है फ्लोट किया जाता है और उस पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो है अहम रोल रहता है एयरफोर्स का, हेलीकॉप्टर्स की मदद की जाती है। जगह नहीं है, हवा में हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, रस्सी के जरिए नीचे उतरे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि ये जो पंजाब में जो प्राकृतिक आपदा आई थी उसके बाद डैम के दरवाजे भी खोलने पड़े थे और कई इलाके समय पूरी तरह से बस एक शॉट की बात है। वहाँ पर ये थे कि हाई ऑल्टीट्यूड्स था, माउंटेन्स थे, लैंड करने के हेलीकॉप्टर के पास कोई जगह नहीं थी, रोड्स कट ऑफ थे, हमें जाना ज़रूरी था इस चीज़ के लिए। एक्स पठानकोट प्रॉब्लम ये थी कि बारिश बहुत हो रही थी और पानी पूरा भरा हुआ था इस चीज़ के लिए। एक्स मंडी प्रॉब्लम ये थी कि ऑल्टीट्यूड्स हाई थे, लैंड करने की कोई जगह नहीं थी, हिल टॉप्स थे सारे के सारे, वैलीज बनी हुई थी जिसके अंदर एट टाइम्स विंड्स हमें फेवर नहीं कर रही थी। लेकिन एयरफोर्स के पायलट्स अच्छी तरह ट्रेंड हैं, यूनिट के पायलट्स अच्छी तरह ट्रेंड हैं और उन्होंने सारे ऑपरेशंस विदाउट एनी इंसिडेंट एंड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ ईच एंड एवरीवन किया है इस चीज़ के लिए। क्या क्या इक्विपमेंट्स जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है जब ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाते हैं? ऐसे में हम लोग बहुत इक्विपमेंट यूज़ करते हैं और अपना पूरा सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं। ये जो हेलीकॉप्टर यहाँ पे खड़ा हुआ है इसको हमने ऑलरेडी मॉडिफाई किया हुआ है। अंदर देखेंगे अंदर स्ट्रेचर्स वगैरह लगे हुए हैं, इसके अंदर कोई लाइंग पेशेंट्स वगैरह हैं, हम लोग इमीडिएटली इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर आप लेफ्ट साइड के ऊपर देखेंगे इसमें विंच लगा हुआ है जिसके अंदर हम इंडिविजुअल पर्सन को हार्नेस पे बांध कर ऊपर खींच सकते हैं। यहाँ पर आपका क्रेडल लगा हुआ है कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो फिजिकली चैलेंज्ड है तो वो क्रेडल के अंदर बैठकर ऊपर आ सकते हैं। हम लोगों ने पठानकोट सेक्टर के अंदर और मंडी सेक्टर के अंदर 3 दिन की बच्ची से लेकर 90 साल की लेडी तक सबका रेस्क्यू किया था। तब उन लोगों को हेलीकॉप्टर के अंदर लेकर आना अलग से चैलेंज हो जाता है, उसके बाद वापस उनको लेकर आते थे हेलीपैड्स के ऊपर। जो ऑक्सीजन है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ऑक्सीजन की सप्लाई भी होती है यहाँ पर? ऑक्सीजन हम लोग फिजिकली कैरी करते हैं, हेलीकॉप्टर में अपने आप तो नहीं होता है बट बॉटल्स के अंदर कैरी किया जाता है। अगर किसी की रिक्वायरमेंट होगी तो हम लोग डेफिनेटली उसको यूज़ कर सकते हैं। रहे हैं जो रिसेंटली हिमाचल में